Write down the question. The magnetic flux through a coil, the magnetic flux through a coil perpendicular perpendicular to the plane is varying according to the relation. Perpendicular to the plane is varying according to the relation. According to the relation, phi is equal to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber. 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber. Calculate the induced current through the coil. Calculate the induced current through the coil at t equal to 2 seconds. T equal to 2 seconds. If the resistance of the coil is if the resistance of the coil is 5 ohms, ठीक है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं ये आया हुआ है. करो, कर लोगे ना, बताना पड़ेगा. क्या करो, सिंपल. First of all, in the solution, calculate magnitude of EMF. That is what? That is d phi upon d. If you differentiate this equation with respect to t, what you will get? 5 into 3t square plus 4 into 2t plus 2 into 1 minus 0. 15t square plus 8t plus 2. You can put the value of t here. 250 into 2 is square plus 8 into 2 plus 2. Okay, note down fast. It is 60 plus 16 plus 76, 78 volt.
You have to calculate current. Current is equals to V by R. I is equals to V by R. 78 divided by 5. 15.67. Good. It's very easy. Okay, write down next. Next question. A 10 ohm resistance coil. A 10 ohm resistance coil has 1000 turns. A 10 ohm resistance coil has 1000 turns. And at a time and at a time 5.5 10 to the power minus 4. 5.5 into 10 to the power minus 4 Weber. 5.5 into 10 to the power minus 4 Weber of flux passes through it. 5.5 10 to the power minus 4 Weber of flux passes through it. If the flux falls, if the flux falls, if the flux falls 0.5 10 to the power minus 4 Weber, if the flux falls to 0.5 10 to the power minus 4 Weber in 0.1 second. In 0.1 second, find the EMF generated. Find the EMF generated in volts. Find EMF generated in volts and the charge flown through the and charge flown through the coil in coulombs. Charge flown through the coil in coulombs. Very simple. Use the formula. E is equals to minus d phi upon d. N d phi upon d. Yeah? Sir, Or please phi repeat the line. n phi 2 minus phi 1 upon d or delta. A 10 ohm resistance coil has 1000 turns and at a time 5.5 10 to the power minus 4 Weber of flux passes through it. If the flux falls to 0.5 10 to the power minus 4 Weber in 0.1 second, find the EMF generated in volts and the charge
flown through the coil in coulombs? That is the question. It is very simple. You can simply put the values on this formula, and after that you will get the answer. Try to solve. हाँ बताओ. हो गया कि नहीं? 5 वोल्ट आ रहा है कब से? आंसर इज हाँ 5 वोल्ट. बहुत सिंपल है. -1000 दिया हुआ है, ये 0.5 दिया हुआ है, 10 टू द पावर -4, और ये आपका दिया हुआ है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4. इतने से इसने आया. और टाइम जो दिया हुआ है 0.1 सेकेंड दिया हुआ है ना. -1000 इंटू, यहाँ पे माइनस में आएगा -5 इंटू 10 टू द पावर -4, और अपॉन 10 टू द पावर -1 हो जाएगा. माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा. 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -4, 10 टू पावर -1, ये और ये मिलाएगा कैंसिल. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा, है ना. I इज इक्वल टू V बाई R. इट इज 5/10, 0.5 एम. Sure. What happened? आंसर जो है आपका, करंट जो है 0.5 एम्पियर है, और टाइम जो दिया हुआ है, टाइम 0.1 सेकेंड. Q इज इक्वल टू I. Q is what? I is what? That is 0.5 multiplied by 0.05 कूलम. अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता. ओपन योर एनसीईआरटी फास्ट. ओपन योर एनसीईआरटी. I think you have NCERT. If you have NCERT, you can open your NCERT. You will solve the examples from NCERT. That's very important. Examples भी बहुत important होते हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम मैं करा देने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे examples में खुद करा दूँ.
क्योंकि आप करोगे वो नहीं, मुझे पता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं ओपन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 208, पेज नंबर 208, पेज नंबर 208, एग्जाम्पल नंबर 6.2, 6.2। A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane. In the northeast direction, the magnetic field is decreased to zero in 0.7 seconds at the steady rate. Determine the magnitude of the induced EMF and current during the time interval. सोल्यूशन आप देखोगे सिंपल, आप पाई इक्वल टू बी ए cos थीटा फ्लक्स निकाल ली, है ना। तो इसके बाद ई इज इक्वल टू फ्लक्स का मैग्नीट्यूड लेके टाइम से डिवाइड कर दिया और आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर कर दिया। ये सिंपली यू कैन डू, ठीक है। सेम क्वेश्चन 6.3 भी उसी टाइप का है, ये भी आप करोगे 6.2 और 6.3। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6.4, है ना। आप सोल्यूशन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन, सोल्यूशन देखोगे कुछ समझ में आ रहा है। इट इज बेस्ड ऑन लेंस लॉ, देख लेना। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लेंस लॉ। तो लेंस लॉ को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो हो रहा है। ट्राई टू रीड द सोल्यूशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। ये समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने पोर्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। समझ लो बात, समझ रहे ना बात को ध्यान से, समझ में थोड़ा कम आता है। लेंस लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द प्लेन, और इसमें कई टाइप के शेप रखे हुए हैं, है ना, कई टाइप के शेप रखे हुए हैं। आपका पहला जो शेप है कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ट्रायंगुलर। मेटल का ये वायर है, मेटल का ये वायर है, ये ऐसे ट्रायंगुलर, और ये बाहर निकलता है, इसकी वेलोसिटी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। ये क्वालिटी। तो बताओ इसमें करंट इंड्यूस्ड होगी या नहीं? पहली बात, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अगर E होगा, R तो होगा ही, वायर है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, E होगा, R होगा, तो I होगा। E होने के लिए आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है? E होने के लिए मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ क्रिएट होने के लिए क्या नेसेसरी है? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका फ्लक्स में चेंजमेंट होना चाहिए, मतलब आपका सिंपली फ्लक्स में चेंजमेंट होना चाहिए, यानी डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंजमेंट होना चाहिए। तो क्या ये बाहर अगर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो क्या इससे लिंक्ड जो भी फ्लक्स मीन्स जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? बताओ, magnetic field of line is increasing or decreasing, passing linked with this particular area? Will it decrease or increase? हाँ, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज है, बिल्कुल सही बात है। देखो सिंपल है, ये एरिया है, इससे पास होने वाली, मान लेते हैं कि 100 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, इसके अंदर से जा रही है ना, इसके अंदर 100 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जा रही है, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से ये कॉइल बाहर निकल रहा है, तो इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है 100 से कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है ना, 100 से कम हो जाएगी, डिक्रीज करे इंक्रीज करे डजंट मैटर। हमको बात सिर्फ किसकी चाहिए? change in flux, change in magnetic field of line linked with the particular area, है ना? तो आपको क्या चाहिए? चेंज इन मैग्नेटिक, ये चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, और ईएमएफ अगर डेवलप होगा तो इसमें करंट भी आएगी। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर करंट आएगी, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ रही बात? कैसे होगी? क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। अब लेंस लॉ क्या कहते हैं? लेंस लॉ कहता है, लेंस लॉ कहता है कि जिसकी वजह से जिसकी वजह से इसमें करंट डेवलप हो रही है, वो अपने ही कॉज का अपोज करेगा, ठीक है ना? द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल will be such that it opposes the cause which produces it। नहीं मतलब ना, यानी जिसकी वजह से इसमें करंट डेवलप हो रही है, वो उसी कॉज का, उसी वजह का अपोज करेंगे। सिंपल, ठीक है? देखो यार, इसमें करंट जो डेवलप हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? बाहर जाने की वजह से, वो बाहर नहीं जाने देगा। या फिर हम कह सकते कि फ्लक्स के डिक्रीज करने की वजह से हो रही है। करंट किसकी वजह से डेवलप हो रही है? करंट डेवलप हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से। क्या करेगा? डिक्रीज नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ये हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से इसमें करंट डेवलप हो, ईएमएफ डेवलप हो रहा है, दैट्स व्हाई करंट डेवलप हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फ्लक्स को, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉइल विल नॉट डिक्रीज, इसको डिक्रीज नहीं होने देगा। ठीक है, कैसे डिक्रीज नहीं होने देगा? देखते हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो कॉइल है, ये ट्रायंगुलर कॉइल, इस तरह ट्रायंगुलर, और अगर इसमें
ऐसे करंट फ्लो हो जाए। क्लॉक, तो इसके मिडिल से यानी इसके इनसाइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। इसके करंट डेवलप होने से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन। ये करंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन, ये करंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन, बिल्कुल सही, इनटू द प्लेन। अगर मैं रिवर्स कर दूं ऐसे, आउट ऑफ द प्लेन, इसमें क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अच्छा इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, इन जा रही है, देखना लगा, इन हो रही है। और जब बाहर निकल रहा है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट अस सपोज 100 पहले पास हो रही, ठीक है, बाद में क्या होगा, 90 हो गई, 80 हो गई अंदर की तरफ। तो इसमें अगर करंट कुछ इस तरह से डेवलप हो कि 100 से जैसे ही 90 हुई, ये करंट को डेवलप इस तरह से करे, इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये खुद डेवलप करने लगे इनटू द प्लेन। यानी कि अगर 10 कम हो गई, जैसे 100 से 90 हो गई निकलने, तो इसमें करंट, हम इसमें उतनी करंट डेवलप करेगा, उतनी ही करंट डेवलप करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इन आने लगे, यानी कि करंट की वजह से 10 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन और आ जाए। अब ये भी क्या है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन पहले 100 थी, बाद में घट के 90 हो गई, लेकिन करंट डेवलप करके इसने क्या किया, 10 बढ़ा दिया, तो 100 रह गई। लेकिन अगर मैं ये लेता, फॉर एग्जाम्पल ये लेता, ये वाला, तब क्या होगा, अगर मैं ये वाला लेता, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, आउट ऑफ द, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन से क्या होता कि ये बाहर की तरफ, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाता, ये तो इनटू द प्लेन है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये वाली आउट ऑफ द प्लेन देती, तो क्या होता, नेट मैग्नेटिक फील्ड और कम होता। तो इसलिए इस कॉइल में जो करंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, यानी क्लॉकवाइज करंट होगी, क्लॉकवाइज करंट होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये जब से बाहर निकलेगा, इसमें करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। यू कैन सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन देखो, पढ़ो, सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ता हूँ, तुम लोग भी पढ़ो फटाफट। देखो फर्स्ट सोल्यूशन में, सॉरी ये तो सेकंड का था, सेकंड सोल्यूशन में देखो, ड्यू टू द आउटवर्ड मोशन magnetic flux through the triangular loop ABC, ABC, ABC decreases, due to which the induced current flows along BACB, BACB clockwise, correct? So as to oppose the change in flux. So as to oppose the change in flux. क्लियर होगी बात? किसी को डाउट है? अभी पूछ लो, तो फिर बाद में पूछ, समझ में आ गया नहीं आया, क्या फिर से बता देगा? सेम आप मेथड फर्स्ट के लिए और थर्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना। देखो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। फर्स्ट के लिए आप देखोगे, इट इज इनटू द प्लेन, सॉरी इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। जो फर्स्ट वाला है आपका, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, तो वो इंक्रीज नहीं करने देगा, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो फर्स्ट वाले में आप देखोगे तो आपका बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी यानी एंटी क्लॉकवाइज,
सेम अगर आप थर्ड की बात करोगे तो करंट विल बी क्लॉकवाइज। और बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बताओ, सभी लोग को समझ में आ गया? यस और नो? ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड रिप्लाई यस और नो। सबको आ गया? ऑनलाइन में ज्यादा समझ में आता है क्या? अपोज करेगा तो नेट कम नहीं होना चाहिए, कम हो रहा था तो उसको बढ़ाएगा तब ना अपोज होगा। जितना कम होगा उतना ही बढ़ा दे। अपोज का मतलब क्या होगा? नेट को कम कर देना, कम हो रहा था उसको और कम कर दो, वो तो सपोर्ट हो गया। समझे बात नहीं? अगर कम हो रहा है, कोई बेचारा डूब रहा है, उसको और डुबा दो, वो अपोज हुआ कि सपोज हुआ? सपोर्ट हुआ। देख लो ना ध्यान से, फिजिक्स अलग चीज है। अगर कोई नदी में डूब रहा है उसको डुबा दो तो वो सपोर्ट हो गया, और डूब रहा है उसको ऊपर अपोजिट डायरेक्शन तो वो अपोज हो गया। समझे बात? ये फिजिक्स है। मतलब नहीं, मैं बात कर, कोई चीज हो रही है उसको और बढ़ा दो, इंक्रीज कर, तो वो सपोर्ट ही हुआ ना। कोई वर्क हो रहा, कुछ भी काम है, उस पर अगर हम और उसको बढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है? उसको सपोर्ट ही कहते हैं। कोई भी काम कर रहा, कोई आदमी कोई कोई वर्क कर रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे फादर है या कोई गार्जियन तुम्हारे वो काम कर रहे हैं, उसमें आगे जाके किसी उनके काम को बढ़ा दो तो सपोर्ट कहते हैं उसको। कोई नदी में डूब रहा है, मतलब वो भी एक वर्क है, डूब रहा है, और उसको डुबा दो तो सपोर्ट हो गया। और अगर उसको बाहर निकाल दो तो डूब रहा था तो उसके अपोजिट वर्क किया तो अपोज हो गया। ठीक है, तो अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब कुछ और निकल रहा है। कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स की कॉइल बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो, इसको डिक्रीज नहीं करने का, अपोज करना। क्या इसको इंक्रीज करना, मतलब कांस्टेंट रखना, जितना कम हो उतना ही हम बढ़ा देंगे, अपोज कर देंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन। और सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड में तो कोई भी पास हो जाए, कोई भी पास हो जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। बोर्ड से तुम डरने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। बहुत अच्छे नंबर पे आया। लोग पूरी साल अगर क्लास करोगे मेरी, मैं तो गारंटी देता हूँ 80+ तो नहीं है, कहीं कहीं नहीं है, 80+ तो कहीं नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से करोगे तो मैं इतने क्वेश्चन करा देता हूँ, इतने एग्जाम्पल्स सॉल्व करा देता हूँ, इतना ही कर लोगे तो 80+ तो कहीं नहीं है। अब फेल होने की तो दूर दूर तक बात ही, लेकिन करोगे तब ना। लेकिन मैं चाहता हूँ बोर्ड, सिर्फ बोर्ड को फोकस ना करो, बोर्ड तो हमारे प्राइमरी है, सिर्फ बोर्ड को ना, उसके आगे आप कॉम्पिटेटिव लेवल को भी फोकस करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव लेवल में बहुत आते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं नीट के लिए, जेई मेंस के लिए पढ़ाता हूँ, है ना। जेई मेंस के लिए अभी तो यही बाउंस होने लगता है, इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें आती हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो और हाई लेवल में पढ़ाई जा सकती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल है, ये सब तो सिंपल सिंपल चीज है। इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना, आप बोर्ड के लिए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है ना। आगे देखो, और भी क्वेश्चन दिए, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है। एग्जाम्पल 6.5, रीड द क्वेश्चन। एक पढ़ो पहले, पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट पढ़ना बाद में, फिर तीसरा पार्ट पढ़ना।
पहले ए पार्ट पढ़ो। ए वाला क्या लिखा? A closed loop is held stationary in the magnetic field. ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो अभी नहीं हो पाएगा। अभी अभी इमोशनल ईएमएफ नहीं पढ़ा, इमोशनल ईएमएफ आपने अभी नहीं पढ़ा। ये फिगर किसका है? 6.8। 6.8 is explained in part C. सी पार्ट को रेक्टेंगुलर लूप। ए पार्ट में ए पार्ट बी पार्ट नहीं हो पाएगा। अभी हम लोगों ने इमोशनल ईएमएफ नहीं पढ़ा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमोशनल ईएमएफ है। इमोशनल ईएमएफ हमने अभी नहीं पढ़ा। इमोशनल ईएमएफ पढ़ लेंगे तो सी पार्ट पढ़ो इतना से। सी पार्ट, a rectangular loop and a circular loop are moving out of the uniform magnetic field region to a field-free region with a constant velocity v. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is normal to the loops. पहली बात क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन समझना है, सोल्यूशन तो कोई भी कर लेता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो वैसे भी आधा 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 सोल्यूशन हो ही जाए। कोई कुछ लिख रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? गुड। देख, एक रेक्टेंगल है, वो बाहर निकल रहा है और एक सर्कल। कांस्टेंट वेलोसिटी से पूछा क्या इसमें? In which loop do you expect the induced EMF to be constant? पहली बात तो जब जिसकी बात करें उसका फार्मूला लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा आपका माइनस डी फाई अपॉन डी, माइनस डी फाई अपॉन डी। क्या मतलब? यानी हर एक सेकेंड में, in every second, if the change in flux is same, that means the EMF will remains the same, since EMF will be constant. अगर हर एक सेकेंड में यानी हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन फ्लक्स है वो भी फिक्स हो, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, दैट मींस EMF विल बी कांस्टेंट। समझ में आया? एक में एग्जांपल देके समझा, न्यूमेरिकल वैल्यू ले।
देखो प्रैक्टिस नहीं होती है ना न्यूमेरिकल, यही प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा अगर मैं जनरल चीजें बोल देता हूँ तो समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ता है। देखो ये 5 है, ये 100 है, ये 200 है, ये 300, ये प्रॉब्लम होती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर हर एक सेकंड में चेंज इन फ्लक्स सेम, चेंज इन फ्लक्स नॉट फ्लक्स, बोला जैसे ये 100 फ्लक्स मान लेते हैं, 100 है, 100 से 90 हुआ कितने सेकंड में? 2 सेकंड। तो अब 90 से 80 होगा 2 सेकंड, तो ये कितना हुआ? 10/2 5। ये कितना हुआ? 10/2 कितना? 5। तो 5 हर एक फिक्स टाइम इंटरवल है, हर हर 2-2 सेकंड पे जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कांस्टेंट। अगर ऐसा हुआ तब ईएमएफ कांस्टेंट होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। देखना जाए क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट स्पीड से निकल रहे हैं, यानी हर एक सेकंड में इसकी जो डिस्टेंस कवर होगी, डिस्टेंस हर एक सेकंड में सेम होगी। तो मैं कहूंगा कि एक सेकंड में ये इतना बाहर निकलेगा, अगले एक सेकंड में इतना बाहर निकलेगा, अगले एक सेकंड में इतना बाहर निकलेगा। बोलो आउट ऑफ द मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है ना, इसके बाहर हर एक सेकंड में इक्वल एरिया निकलता है, इक्वल एरिया इक्वल एरिया बाहर निकलता है। यानी कि जितनी भी एक सेकंड में जितना भी फ्लक्स कम होगा, अगले एक सेकंड में उतना ही फ्लक्स कम होगा। बोला क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर एक सेकंड में जो फ्लक्स में डिक्रीमेंट होगा इट विल बी सेम। तो हम बोलेंगे कि तब यहाँ पे इसका ईएमएफ जो होगा वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ की बात करूं, पहले एक सेकंड में इतना निकलेगा बाहर, बोलो पहले एक सेकंड में इतना कम निकलेगा, छोटा थोड़ा, और अगले एक सेकंड में इतना निकल जाएगा। पहले एक सेकंड में इतना छोटा सा एरिया, बड़े अगले एक सेकंड में क्या होगा? बहुत बड़ा एरिया होगा। फिर अगले एक सेकंड में और बड़ा एरिया हो जाए, फिर अगले एक सेकंड में छोटा एरिया हो जाए, अगले एक सेकंड में और छोटा एरिया हो जाए। जब ये पूरा सर्कल बाहर निकलने लग गया तो एरिया क्या होगा? कम हो। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में जो चेंज इन एरिया है या चेंज इन फ्लक्स जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट इन केस ऑफ सर्कल। दैट मीन्स ईएमएफ is not constant in case of circle and EMF is constant in case of rectangular loop when it is moving out of the magnetic field with constant velocity. बाउंस हो गया क्या? बताओ क्या बता। पहले जो क्वेश्चन मैं बोला हूँ पहले उसको तुम लोग आउट ऑफ द क्वेश्चन चलने लगते हो। पहले जो ये क्वेश्चन पहले ये बताओ आ गया या नहीं आया? पहले मैं इसकी बात करूँ, बाद में मैं उसमें मॉडिफिकेशन करूँ। हाँ अब बताओ तुम लोगों का क्या क्वेश्चन आ गया? चलो गुड। हाँ पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? सर इसमें करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है ट्रायंगल में भी कांस्टेंट नहीं रहेगा ना? हाँ ट्रायंगल में भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ट्रायंगल में भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसमें ज्यादा करंट डेवलप होगा जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। स्टार्टिंग में देखो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है ना। अगर दोनों की विड्थ सेम है, वैसा देखने में तो लग रहा है कि सेम है। अगर दोनों की विड्थ सेम है तो इमेजिन करो पहले एक सेकंड में एरिया कम निकले, अगले एक सेकंड में एरिया ज्यादा निकले, यानी रेट यहाँ पे फ्लक्स में चेंजमेंट ज्यादा हो पहले एक सेकंड स्टार्टिंग में, जब ये सर्कल हाफ निकलने से पहले तक बहुत सारी कंडीशन बन जाती है। वैसे पता नहीं आधे लोगों को तो यही नहीं समझ में आया होगा, तो लोग एक लेवल और ऊपर पूछने लगे। मैं देखो जानती हूँ पूछ दिए तो बता देता हूँ।
अगर हाफ सर्कल निकलने से पहले तक जो रेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, वो सर्कल के केस में ज्यादा होगा, इसमें कांस्टेंट पहले थोड़ा निकला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है, कितना चेंज हो जाएगा चेंज। इसमें पहले कितना निकला पहले आपका 20 निकला, फिर बाद में 40 निकला, फिर 60 निकला, कितना चेंज हुआ 20 का, इसमें 49 का चेंज हुआ। तो चेंज इन फ्लक्स ज्यादा है किसका, सर्कल का, इसलिए ईएमएफ पहले स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, फिर बाद में कम होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, इफ यू हैव यू कैन आस्क, है ना। मोशनल ईएमएफ बचा हुआ है, मोशनल ईएमएफ भी मैं बता दूँ, नो डाउट। ओके, you have, if you have no doubt, you can simply leave the class after writing your attendance. After writing your attendance, you may leave the class.